There's a lot that I want to share this evening. बहुत कुछ है जो मैं आज की शाम आपके साथ बांटना चाहता हूँ. But can I begin with saying this? Our God answers when we call. You see, sometimes there are some things that we hear so often that we lose the value of those words. कोई चीज़ जब हम बार बार सुनते हैं तो उसका वैल्यू कम हो जाता है. कोई चीज़ बार बार जब हम देखते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है. How many of you have ever seen somebody ride a cycle? Everybody, right? किसी ना किसी को कभी ना कभी आपने साइकिल चलाते हुए देखा होगा. Have we ever wondered, कभी हमने सोचा कि यार 2 इंच के टायर के ऊपर 70 किलो का बंदा बैठता है और एक जगह से दूसरी जगह बिना गिरे जाता है, if he knows how to ride. और हमने ये चीज़ इतनी बार देखी है that we cease to see the wonder of it. Amen. हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग कभी कभी ध्यान भी नहीं देते कि यार ये कैसे हो सकता है. 2 इंच के जगह पर अभी किसी को मैं खड़े रहने बोलूं तो नहीं खड़े रह पाएगा. लेकिन हम, are you getting what I'm trying to say? So when I say our God answers, we've heard it so many times that, yeah, tell us something new. But can I tell you, can I encourage you today? क्या मैं आपको ये कहना चाहता हूँ? Our God really answers. Amen. Our God really answers. I don't know what you've been thinking. I don't know what have been your thoughts when you came here. मुझे नहीं पता आपके विचार कैसे थे जब आप यहाँ पर आए. But I want to start by saying this. Our God answers. हमारा परमेश्वर जवाब देने वाला परमेश्वर है. हमारा परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है. Amen. Even no is an answer. Amen. Even no is an answer. Many times we don't want to hear no, but that's an answer. Amen. That's an answer. Amen. So the reason I'm saying this is because everything that we've been doing here for the last 10 days now, 10, 11 days, there is going to be a response from heaven for it. Amen. जो कुछ भी हम लोग यहाँ कर रहे हैं, जो कुछ भी यहाँ पर बोया जा रहा है, जो कुछ भी यहाँ पर गाया जा रहा है, जितनी दुआएं यहाँ से उठ रही हैं, जितने लोग पुकार रहे हैं, स्वर्ग से उसका एक उत्तर आना है. Amen. स्वर्ग से उसका एक उत्तर आना ही होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो सिर्फ देखते खड़े रहने वाला परमेश्वर नहीं. He just doesn't stand there and see what is going to happen. He receives what he has to receive, and the nature of God is this, that he is a giver. Amen. परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का चरित्र यह है कि वो देने वाला परमेश्वर है. तो जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है, हम विश्वास करते हैं वहां से उसका एक रिस्पॉन्स शुरू हो चुका है. Amen. And if we have to really receive what God is about to send, or God is rather sending, अगर हमें उन चीज़ों को पाना है जो परमेश्वर भेजता है हमारे लिए, if we have to receive, then we have to anticipate for it to come. Amen. हमें उसकी अपेक्षा करना है. Hallelujah. When you're playing cricket and somebody hits a ball and you can get a catch, the fielders, they anticipate which way to run, where to stop, how far to go, how behind to be, how high to jump, and all those things, so they can, grab that ball that is coming towards them. Amen. वो लोग अंदाजा लगाते हैं कितनी दूर भागना है, कितने नजदीक रहना है, कितनी तेजी से दौड़ना है, ताकि वो उस बॉल को पकड़ सके. Amen. We've got to be those people prepared to receive what God is about to send. Come on now. Amen. Because nothing is going to just fall into our laps just like that. Just because I came for Saturate all the 21 days, blessings will not just fall into my lap. Just because we cried out, it is not going to happen. Just because I called on God, just because I cried, I even wept, there were tears, I bet there were tears. I understand all those things, but we've got to be in a place where we are ready to receive. Amen. Hallelujah.
And I believe that the response from God's throne has already begun. And one thing that is needed for the church today, एक चीज जिसकी जरूरत कलीसिया को आज के दिन में है, ताकि हम उस बहाव को, परमेश्वर के उस काम को पा सके जो परमेश्वर हमारे लिए करना चाहता है. And that one thing that will help us hold it. You know, it should not be like, as the Bible says, that we earn and we put it in pockets with holes and everything that we earn goes off. ऐसा नहीं होना है कि हम कमाएं और जो कुछ हम कमाते हैं ऐसी जेबों में डालें जहां से वो बह जाता है क्योंकि जेबों में होल है. Amen. You know, अगर हमें, if we've got to plug those gaps in, अगर हमें उन जगहों को भरना है, तो एक चीज जिसकी जरूरत है वो है पवित्रता. Amen. One thing that is needed is purity, is holiness. Hallelujah. Hallelujah. You know, and some of my church members are here. In the last 4 weeks, we've been only talking about purity. We've been only talking about purity in thoughts. We've been only talking about purity in our words. You know, we speak a lot of nonsense without our knowledge. And there needs to be purity in our thoughts, in the intentions of our heart. हमारे हृदय की जो मंशा है, हमारे हृदय की जो इच्छाएं हैं, उनके अंदर पवित्रता होनी है, शुद्धता होनी है. And that is one thing which will enable us to hold what God is about to send our way. Amen. Amen. Before we get into the word, can we just bow our heads down and pray and say, God, help us understand what you are doing right now. Father, help us understand what the desire of your heart is, God. Father, we know that it's not about singing the songs we like. It's about singing the songs that you like, oh God. It's not about what we want to do, but it's all about what you want to do and what you have purposed and what you want to do the way you want to do, Jesus. So help us understand your heart, oh God. This evening we pray, open the eyes of our understanding that we could see what you want us to see, oh God. Open up our hearts, Father, that we could understand and receive what you want us to understand and receive. All for the glory of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. If you have your Bibles with you, this is one book I am tripping over for the last 1 month, and that's the book of Daniel. If you could please open, अगर हम दानियल की किताब को खोल सके, अगर आप साथ में अपने बाइबल्स को लाए हैं, and let's just read chapter 1, verse 8. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Amen. हिंदी में अगर हम पढ़ें तो, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होगा. इसीलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े. Amen. Can I say this? A life of holiness is never accidental. It's always intentional. A life of holiness is always intentional. पवित्रता का जीवन अकस्मात नहीं होता. पवित्रता के जीवन के लिए हमें निर्णय लेना पड़ता है. पवित्रता का जीवन जीने के लिए हमें अपने अंदर ये ठानना पड़ता है, जैसे दानियल ने किया. Like Daniel purposed in his heart. You know, I want to give you a background. A lot of times when we read this, we forget the settings in which, you know, these things took place. हम भूल जाते हैं कि किन परिस्थितियों में ये सब कुछ हुआ. जब अगर हम इन परिस्थितियों के ऊपर ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि ये एक ऐसे बंदे के बारे में है, उसके 3 दोस्तों के बारे में है जो बंधुआई में थे. They were slaves in a foreign land. They were slaves in a country that they had never been to before. They were slaves in a country where they did not have a voice. They were slaves in a country where the king did not know their God. Amen. They were in a strange land with strange traditions that they were not accustomed to. वो लोग ऐसी ज़मीन पर थे जहाँ वो लोग गुलाम थे.
And the king, in those days, he wanted to expand his cabinet. And so he said, bring me some of these guys. Bring me some of the sons of Judah. Bring me some of these guys who, and अगर हम देखें कि किस तरीके के लोगों की उसने मांग की वहाँ के राजा ने, तो हम पढ़ेंगे. If you want to read, you can just go home and read the whole first chapter of Daniel. It says, bring me boys who are wise. Bring me boys who look good. मुझे ऐसे बंदे लेके आकर दो जो होशियार हो, जो समझदार हो, जो चिन्हों को समझ सके. ऐसे लोगों को लाकर दो जो दिखने में भी बहुत सुंदर हो. And he called specifically children from the house of Judah. उसने यहूदा के गोत्र से जो बच्चे थे उनको बुलाया. उसने परमेश्वर के बच्चे. एंड आई एम वंडरिंग, ये इतना बड़ा राजा है, इसका इतना बड़ा राज्य है, और उसको अपने लिए कैबिनेट के लिए लोग चाहिए, उसको अपनी सलाहकारी के लिए लोग चाहिए, और वो परमेश्वर के बच्चों को बुलाता है. कैन आई टेल यू समथिंग? द वर्ल्ड वांट्स यू बिकॉज दे नो देयर इज समथिंग ऑन यू. Amen. वो आपको बुलाते हैं. They are looking out for you. वो आपकी तलाश में है. वो आपको वो कहते हैं हमें ऐसे तरीके के लोग चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए जिनका विश्वास ऐसा हो, हमें ऐसे लोग चाहिए. You know, few things that they tell you that they need in a candidate when you go for your job interview. We need people who are honest. We need people who will stay with us for some time, who will not leave us in their training period or just after training period, or people who will not leave us if we don't give them a raise in the next appraisal. They have these wants in them, and the world needs all those things, and I believe we should be the people who come true with all those parameters. At least the church should be the place where all those parameters are met. Amen. Come on now, do you believe it? If not in church, where? If not in church, where? Amen. And these guys were called, और इन लोगों को बुलाया गया, और ये लोग गए, और राजा ने उनसे कहा 3 साल तुम मेरे महल में रहोगे, 3 साल मैं जो खाता हूँ खाओगे, 3 साल मैं जो पीता हूँ पियोगे, 3 साल. It says you will learn my language, you will learn the customs of this country. तुम यहाँ के भाषा को सीखोगे, तुम यहाँ की बोली सीखोगे, तुम यहाँ के रीति रिवाजों को सीखोगे. 3 साल. Can you imagine 3 years training period? It's a long time. Amen. Generally it's a month and they put you up there, but the king wanted to ensure, वो राजा चाहता था कि ये लोग 3 साल के बाद जब राजा के सामने खड़े हों, वो उसके राज्य के सारे रिवाजों को जाने, उसके राज्य के परंपराओं को जाने, उसके राज्य के इतिहास को जाने. Amen. 3 years. And they were supposed to learn. They were supposed to learn the traditions of this country. They were supposed to learn the language of this country. They were supposed to learn the customs and the ways things are done. इस राज्य में जिस तरह चीजें होती हैं, इस राज्य की भाषा, इस राज्य के परंपराओं को उनको सब सीखना था. To learn something new, there is a lot of unlearning that we have to do. हमें कुछ अगर नया सीखना है तो बहुत कुछ जो पहले सीखा हुआ होता है उसको भूलना पड़ता है. Amen. And here there are children who grew up learning from the word of God, learning from the true living God, and here they are in Babylon and they're supposed to learn something that is alien to them. And even as slave boys, they said, we will not eat what you're asking us to eat. वो लोग गुलाम थे. Can you imagine? एक गुलाम की अपनी मर्जी नहीं होती. एक गुलाम को जो कहा जाता है वो करना पड़ता है. वो उठ के बोल नहीं सकता कि मैं नहीं करूंगा बोल के. अगर वो उठ के बोले ऐसा कुछ तो उसकी जान जाने का खतरा होता है. मगर यहाँ पर हम एक ऐसे बंदे को देख रहे हैं, ऐसे जवान को देख रहे हैं जो खड़ा होता है, कहता है नहीं, मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा. Amen. और हम लोग कहते हैं भाई आपके लिए बोलना आसान था, दानियल के लिए शायद बोलना आसान था. नहीं आसान था, उसकी जान खतरे में थी. और हम लोग कभी कभी बोल देते हैं, ब्रदर क्या करूं, मेरे बॉस ने बोला था बोलने के लिए. I had a lot of peer pressure to handle. All my friends are going. Come on now. You guys are too silent.
You recognize what I'm saying? Anybody identifies with it? Come on. Let's be honest in the house of God. We all deal with it. हम सब इससे गुजरते हैं. You know, Gavin and I, we used to work together some years ago, and हम जिस प्रोसेस में काम करते थे, रात 2:30-3 बजे शिफ्ट खत्म होता था, and everybody wanted to go to the nearest bar and sit and drink. सारे लोग, and I'm sure they called him also, Gavin को भी and मुझको भी, अरे पीना नहीं रे, चल साथ में. Yeah. Come on, you guys are acting too holy right now. कुछ लोग सोच रहे हैं, हाँ उसके बाद क्या किया इसने. There's a lot of peer pressure. Can you imagine the others who were chosen with Daniel? They said, are you gone crazy? Do you even know what you're talking about? Daniel, you know, you have no idea the opportunity that you are missing. You will get a chance to be in the king's council. You will stand before the king. Tu raja ke samne khada rahega. You will be one of his, you know, the closest guys. You are missing on an opportunity. You know what? I am willing to give away every opportunity that causes me to go away from my God. He said, that's what he said. I am willing to do this. You know why? Because the purity that I hold inside of me is more valuable than a position that comes my way. After 3 years, I don't even know if I will get through the training period. Don't believe everything your employer says when he is giving you an induction. They were supposed to learn the language of that country. They were supposed to learn the traditions of that country. And one boy stands up and says, I will not do this. But Daniel, there are so many prospects to this job. You will go places. तुझे पता भी है तो किस चीज का इनकार कर रहा है. Do you even have an idea the kind of perks you will have standing in the presence of the king? तुझे पता है? अरे तू इनकार कर रहा है तो भी चल, बाकी सारी चीजों छोड़ दे, फायदे छोड़ दे, नुकसान देख. You know, बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई फायदा देखने से पहले नुकसान देख ले कोई डिसीजन का, है कि नहीं? अभी तूने मना कर दिया ना, वापस जाना पड़ेगा, पता नहीं गुलाम की जिंदगी, पता नहीं क्या करना पड़ेगा. यहाँ कम से कम राजा के घर में मिलने बैठने मिला. फेल हुए तो हुए, हो गए यार, 3 साल तो ऐश करने मिलेगा. But he holds on to his word. And I love what is in the next verse. हम 9वां वचन देखेंगे please. And now God had brought Daniel into favor and tender love with the prince of the eunuchs. As soon as we take a stand for what we believe in, God releases favor. The next verse says, and Daniel found favor. Amen. Can you imagine this? In a foreign land, a slave boy. And we think just because I am in an office in a big company, I might not receive that promotion when I stand for what is true. Can I tell you something? When we stand for truth, the truth will stand for us. Amen. जब हम सच्चाई के लिए खड़े रहेंगे, सच्चाई हमारे लिए खड़ी रहेगी. Hallelujah. अगला, it's so amazing that right the next verse says, and Daniel found favor where it was not expected. You know, मेहरबानी परमेश्वर की ऐसी ही जगहों पर आती है जहां पर हम उसकी अपेक्षा नहीं करते. Hallelujah. And he found favor. And we know exactly what happened. You know, and this eunuch also said, you know, if I don't give you the right kind of food, the king might kill me. राजा मुझको मार देगा. और डैनियल कहता है 10 दिन मुझको परख ले तू. Test me for 10 days. I will eat दाल चावल. मैं दाल चावल खाएगा. जिसको जो खाने का खाने दे, मैं दाल चावल खाएगा. 10 दिन के बाद तू देखना. Amen. There is a certain sense of boldness that comes when you walk with God.
Amen. You can throw a challenge into the face of the world and say, test me. I will walk by the word, and dare somebody takes my blessing away from me. Amen. In the world they say you cannot do business without lying. झूठ बोले बगैर business नहीं होता है boss. And there are so many Christians I see, they are Christians, but when we deal with people and the way we deal with them, do you know that people don't want to come to church because somewhere some Christian did not stand and keep the word that he gave to that person? लोग कलीसिया में आना पसंद नहीं करते. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी विश्वासी ने किसी ना किसी को धोखा दिया, या जो वादा दिया वो पूरा नहीं किया. लेकिन जब हम खड़े होते हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की मेहरबानी हमारे जीवनों के ऊपर आती है. आमीन. सुनो, पर कभी भी हम एक बात ना भूले कि हमारा जो प्रमोशन है वो सिर्फ परमेश्वर के पास से आता है. हमारे बिजनेस में बढ़ोतरी सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है. हालेलुया. आमीन. हम लोग जो यहाँ हम टैक्स बचा के कितना बचाएंगे? 400 रुपया, 500 रुपया. अभी मार्च अप्रैल आएगा, सारे लोग, let me not go there. We are in a time where people look for purity everywhere else but the church. हम लोग एक ऐसे समय में जी रहे जहां लोग पवित्रता के लिए, शुद्धता के लिए हर जगह देखते हैं, मगर कलीसिया की तरफ नहीं देखते. क्यों पता है? क्योंकि कलीसिया ने यह विश्वास करना छोड़ दिया है कि हम शुद्धता का जीवन जी सकते हैं. ब्रदर, करना पड़ता है. पास्टर, आपको क्या मालूम? अरे क्या मालूम मतलब? You guys are very quiet. I'm glad. The word of God does this for us. It makes us think. परमेश्वर का वचन हमें सोचने पर मजबूर करता है. और आज की शाम मैं चाहता हूं कि हम सोचें. We try to do all these things. हम ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं. हम ये भी करने की कोशिश करते हैं. हम काम करते हुए ये प्रोजेक्ट भी करते हैं. हम ये प्रोजेक्ट करते हुए वहाँ पर भी पार्टनरशिप करना चाहते हैं. ये सब कुछ क्यों? क्योंकि हमने ये अपने लिए तय कर लिया है कि हमारी पहचान उन चीज़ों से बनती है कि जो चीज़ें हम करते हैं. We draw our identity from things that we do. Wherein it should be the other way around. We should draw our identity from whom we belong to. Amen. मेरी पहचान ये नहीं है. See, every time you ask somebody, you ask a boy, so brother, what do you do? Vijay, I work for Microsoft. And what else? Yeah, that's all. I am a IT engineer or whatever. हम लोग जो काम करते हैं उसको हमारी पहचान बना लिए हैं. लेकिन जब हम ये भूल जाते हैं कि नैसर्गिक तौर पर भी जब एक बच्चा पैदा होता है, उसकी पहचान ये नहीं होती कि आगे चल के 20 साल के बाद ये माइक्रोसॉफ्ट में काम करेगा. उसकी पहचान ये होती है कि ये फला फला का बेटा है. आमीन. हमारी पहचान बदलनी नहीं चाहिए. This is how the world has told us. You have to learn the ways of this world. You have to learn the language of this world. जैसे डैनियल को बोला गया था, इस देश की भाषा को सीखो, इस देश की परंपराओं को सीखो, इस देश के ट्रेडिशन को सीखो. और हमें दुनिया में, हम स्कूल जैसे जाना शुरू कर दिया, हमको ये बताना शुरू कर देते हैं कि तुझको बड़ा होना है, तुझको पैसे कमाने हैं, तुझको शादी करनी है, तुझको बड़ा घर लेना है, तेरी बड़ी गाड़ी होनी है, लोगों में तेरी पहचान होनी चाहिए, एक क्या बोलते हैं उसको, विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, अच्छा गोल्डन कलर का उसके ऊपर नाम लिखा होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी पहचान कुछ नहीं है. मगर हम ये भूल जाते हैं कि हमारी पहचान सबसे पहले ये है कि मैं मेरे स्वर्गीय पिता का बेटा हूं. That's my identity. I don't draw my identity into things what I do. Because people do that, we see them stumbling and falling and never satisfied. Because as much as money you make, it will never give you satisfaction because you will always want more. Amen.
इस देश की भाषा को सीखो, इस दुनिया के तौर तरीकों को सीखो. And we've, over the period of all these years, we've unlearned everything that we learned in Sunday school. We've been to Sunday school? कितने लोग Sunday school गए? Please, can I see your hands? Oh, quite a few of you. And in Sunday school, what was taught to us was God owns everything. Sunday school में हमको सिखाया गया कि परमेश्वर हर चीज का मालिक है. संडे स्कूल में हमको सिखाया गया कि दाऊद ने एक पत्थर लिया और वो पत्थर से इतना बड़ा गोलियत को मारा. और जैसे ही हम लोग थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगते हैं ना, हमारा अंदर रीजनिंग आना शुरू हो जाता है. एक पत्थर से कैसा मारा? इसके पहले भी वो ऐसा कुछ करता था क्या? मतलब एम प्रैक्टिस वगैरह. It was easy to believe that God fed 5,000 people out of 5 rotis and 2 machlis. But when we grow up, really, how big were those rotis? Because that's how the world has taught us. और हमने सीख भी लिया उन बातों को. What we और हमने हमारी पहचान उन चीज़ों में पानी शुरू कर दी जो, I was telling in church last Sunday, we started feeding the temporary and we started keeping what is permanent hungry. जो चीज़ परमानेंट है हमने उसको भूखा रखना शुरू कर दिया. जो टेम्पररी है, एम्बिशन, बिजनेस, इसको हमने बढ़ाना शुरू किया. Thank God for people like Daniel who said, whatever it is, I am keeping myself pure. मैं अपने आप को पवित्र रखूंगा, मैं अपने आप को शुद्ध रखूंगा. Hallelujah. And so this is what the enemy does. That's why the Bible says he's the father of lies. The world has always told us we've got to do more to get more. Amen. दुनिया ने हमेशा हमको क्या सिखाया कि ज्यादा करो तो ज्यादा मिलेगा. मगर परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है रेस्ट इन गॉड, बी स्टिल एंड नो आई एम गॉड. And the whole concept of rest is kind of getting lost today. नहीं ब्रदर, वी हैव टू हमको जाके हमको ट्रैकिंग करना है, हमको इवेंजलिज्म करना. प्लीज आई एम सेइंग वी हैव टू डू इवेंजलिज्म. हमको करना है, हमको इवेंजलिज्म करना है, हमको ट्रैक्स भी जाके बांटना है, हमको प्रार्थना भी करना है. बट कैन आई टेल यू समथिंग? गॉड विल नॉट सेंड रिवाइवल बिकॉज आई गो एंड गिव वन ट्रैक. गॉड विल सेंड रिवाइवल बिकॉज दैट्स द डिजायर ऑफ हिज हार्ट एंड ही विल सेंड इट व्हेन देयर इज अ जनरेशन रेडी टू रिसीव इट. Amen. They were supposed to be the counsel of the king. After 3 years of training, 3 साल की ट्रेनिंग के बाद वो राजा के सामने खड़े होंगे. They were going somewhere. वो लोग कहीं जा रहे थे. उनसे वादा किया गया था कि वो कुछ ना कुछ बनेंगे. और दुश्मन ने और दुनिया ने हमको यही सिखाया कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स सम प्लेस. हम लोग कहीं ना कहीं जा रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ हासिल करना है, कुछ ना कुछ बनना है, कोई ना कोई टाइटल लगना है. मेरे नाम के आगे पास्टर का टाइटल लगना है, मेरे नाम के आगे इवेंजलिस्ट लगना है, मेरे नाम के आगे प्रॉफिट लगना है, या मेरे नाम के आगे बिजनेसमैन, बिजनेस एनालिस्ट, क्या क्या जो भी लगना है. मगर हम ये भूल जाते हैं कि वो मेरी पहचान नहीं है. हम ये सोचना शुरू कर देते, अगर मैं पवित्र काम करूंगा तो मैं पवित्र कहलाऊंगा. यस? दो दिन आपने प्रार्थना नहीं किया तो तीसरे दिन परमेश्वर की उपस्थिति में जाते वक्त शर्म आती है. Come on, let's be honest. Yes, no.
एक हफ्ता बाइबल नहीं पढ़ा तो 8वें दिन जब बाइबल उठाते हो तो इधर कान में आवाज बजती, किस मुंह से बाइबल उठा रहा है बे, पिछले हफ्ते क्या किया तूने? और हमने अपने आप को यह विश्वास दिला दिया है कि जब तक मैं XYZ करता नहीं, मैं ABC का हकदार बनता नहीं। जब तक मैं ये करूंगा नहीं, मैं उसके आशीष को पाऊंगा नहीं। और हम ये भूल जाते हैं कि उसने हमसे तब प्यार किया जब हमको उसकी उपस्थिति का अंदाजा ही नहीं था। हमने उसके प्यार को तब पाया जब उसके प्यार को पाने के लिए हमने कुछ किया ही नहीं था। हालेलुया। और हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं आज भी। हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं पता है? वी आर स्ट्राइविंग टू लिव अ होली लाइफ, वी आर स्ट्राइविंग टू लिव अ प्योर लाइफ। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कर लें यार, किसी तरह। आज मेरे दिमाग में somebody was telling me, pastor what do I do, मेरे को बहुत गंदे गंदे विचार आते हैं। बोला भाई आने दे, विचार आने से तू रोक नहीं सकता है। आमीन। सर के ऊपर पंछी को उड़ने से तुम रोक नहीं सकते, उसको तुम्हारे सर पे घोंसला बनाने से रोक सकते हो। कम ऑन नाउ। We don't have to see, this is what the world has told us. You have to do something to become something. But the word of God says something opposite. The word of God says you will be able to do it because you are that person. Amen. पवित्र काम करने के वजह से मैं पवित्र नहीं बनता, मैं पवित्र हूं इसके लिए मैं पवित्र जीवन जी सकता हूं। Hallelujah. I am holy because that's how my God made me. हम लोग अभी गा रहे थे ना, सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। तीसरा लाइन क्या है? मुझको भी तूने बनाया है। तो यार वर्शिप में जो गाया वो वर्ड तक आके भूल कैसे जाते हैं हम लोग? तेरे जैसा किया है, वो पवित्र है कि नहीं है? तो मैं भी पवित्र हूं। तो मैं कोशिश क्यों कर रहा हूं? मैं जीता क्यों नहीं वैसे? क्यों पता है? क्योंकि दुनिया ने हमको सिखाया है, हमने उसके तरीकों को सीख लिया है कि कुछ करो, अच्छा काम करो तो अच्छे कहलाओगे। हालेलुया। हम भूल जाते हैं हमारा परमेश्वर सबसे बड़े पापी को उठा के स्वर्गीय स्थानों में बिठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। Bible, but I love this verse. Can I take you to one verse and it's Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1. Verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. He has blessed us. Amen. It's done. It's कर दिया गया है. Present and it's done. It's not continuous. He has already blessed us. उसने हमको आशीषित कर दिया है. करेगा लिखा है कि करने वाला लिखा है? ऐसा कुछ नहीं है ना. कर दिया है लिखा है, यानी कि वो काम क्या हो चुका है? वो पूरा हो चुका है। यानी कि मैं आशीषित हूं। बोलो मैं आशीषित हूं। मैं आशीषित होऊंगा नहीं, मैं आशीषित हूं क्योंकि उसने मुझको कर दिया है। हालेलुया। सारे रीति के आत्मिक आशीषों को, प्लीज आई एम नॉट और इस वक्त मैं आत्मिक चीजों की बात कर रहा हूं, पृथ्वी की चीजों की बात नहीं कर रहा। पृथ्वी की चीजों को भी उसने दे दिया है। जब जिस चीज की जरूरत होती है वो परमेश्वर देता है हमको। आमीन। क्योंकि परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। उसके बाद वो कहता है, चौथा वचन, according as he has chosen us in him before the foundations of the world, that we should be holy and without blame before him in love. He has chosen us before the foundation. उसने दुनिया की नींव रखने से पहले मुझको चुना कि मैं क्या बना रहा हूं? कि मैं क्या बना रहा हूं? Holy. Say holy. I be holy or I become holy. What is it written? That I should. You be holy. That means you already are.
You continue to be what you already are. You don't strive to become that you already are. हालेलुया. जो रेस मैंने जीत लिया है उसको मैं वापस दौड़ूंगा क्या? अगर वो रेस मैंने जीत लिया है, उसकी जीत का मुझको पुरस्कार मिल गया है, तो क्या मैं वो रेस वापस दौड़ूंगा? एटलीस्ट उस साल तो नहीं दौड़ूंगा, अगले साल दौड़ूंगा तो दौड़ूंगा, बात अलग है. लेकिन उस साल अरे जीत गया, नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं वापस दौड़ता हूं. वापस दौड़ेगा तो मेरे को वापस मेडल नहीं मिलेगा, फिर वो मुझको पागल बोलेंगे. Amen. और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और इस दुनिया में हम ये कोशिश कर रहे हैं, we trying to become what we already are because the enemy is telling us that we are not good enough. We are trying to become holy. We are trying to do holy things. Oh brother, I am going to saturate because I want to become holy. Listen. We don't come to saturate to become holy. We come to saturate because we are already set apart and a chosen generation, chosen to seek the face of God. Amen. We don't come here to become what we are not. We come here because we know who we are, and in that position when we stand, God gives us, because everything is relational. Amen. जो कुछ भी हमको मिलता है परमेश्वर के राज में, वो उस रिश्ते के कारण मिलता है. और यीशु मसीह का जो रिश्ता है हमारे साथ, उस रिश्ते में उसने हमें पवित्र बना दिया है. हालेलुया. मैं क्या करता हूं उस पे मेरी पवित्रता डिपेंड नहीं करती है. मैं जो हूं उसके कारण मैं पवित्र जीवन जी सकता हूं. हालेलुया. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाप करते जाओ, प्लीज. मैं ये कह रहा हूं आपको उस अभिलाषा से डरने की जरूरत नहीं है. मैं ये कह रहा हूं आपको उन विचारों से डरने की जरूरत नहीं है. मैं ये कह रहा हूं आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि झूठ नहीं बोलेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा. मैं ये कह रहा हूं क्योंकि आप ऑलरेडी उसके खून से धोए गए हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी उसके मेहरबानी को पाए हुए लोग हैं, क्योंकि we've already received it. We've got to live in it and believe that we are that chosen generation. Amen. It's not about we becoming something, because when Jesus died on the cross, he finished the work there. There's nothing left to be done. कुछ बाकी नहीं रखा है उसने. Hallelujah. It's the lie of the enemy. And then फिर एक दिन कहीं ना कहीं से वो पंछी एक घास का तिनका लाके इधर रख देता है. फिर कहीं और उड़ के आता है, फिर दूसरा एक लाके रखता है, फिर बोलते हैं अरे यार पहले तो सब विचार आते, अब देखो उसने तो घर बनाना शुरू कर दिया. क्योंकि उसने यहां पर घर बनाना शुरू कर दिया, हम परमेश्वर के घर जाना छोड़ देते हैं. आई एम नॉट वर्दी. ये मैंने क्या कर दिया यार, क्या मुंह दिखाऊंगा परमेश्वर को? ये मुंह है, यही दिखाओगे, और क्या दिखाओगे? And the enemy tries to bring guilt, और वो दोष लेकर आना शुरू कर देता है, और उस दोष के तले हमें दबाना शुरू कर देता है, और हम विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि हम पापी हैं. हम विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि हम परमेश्वर के आशीषों के लायक नहीं. हम विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी के द्वारा कुछ कर नहीं सकता. आमीन. आई हैव बीन इन दैट प्लेस. मुझको पता है. हमें ये बताना शुरू कर देता है कि तूने ये किया है, तूने ये गलत किया, तूने वो गलत किया, तूने ऐसा किया, परमेश्वर तेरा इस्तेमाल नहीं कर सकता, परमेश्वर की मेहरबानी तेरे ऊपर क्या आएगी, अगर आई तो भी आई, तू क्या कर लेगा? It's not my talent that God uses me. It's His grace that He uses me. Amen. It's not the anointing on my life that you know, मेरे जीवन के ऊपर anointing देख के गॉड ने मेरे को चूज नहीं किया. उसका अनुग्रह के वजह से उसने मुझको चूज किया. उसके बाद उसने उसका अभिषेक को उंडेला. हालेलुया. और परमेश्वर का अनुग्रह हर एक के लिए बराबर है. परमेश्वर का अनुग्रह किसी को कम किसी को ज्यादा दिया है ऐसा नहीं है. आमीन. जितना प्रेरित पौलुस के ऊपर था उतना हम में से हर एक के ऊपर है. Come on, you don't believe me.
I want to tell you today, don't let the enemy tell you that you are not the son of your father. Amen. क्योंकि कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, हम कितना भी बड़ा पाप कर ले, हमसे हमारे पिता का नाम कोई अलग नहीं कर सकता है. Hallelujah. When the prodigal son came back, जब लड़का सब लुटा के वापस आ गया, पिता ने दूर से उसको देखा, and the Bible says the father ran to the son and hugged him. बेटा के पास बाप दौड़ कर गया और उसने उसको गले लगाया. I don't care what it is that you're struggling with today, your heavenly father is right here waiting to embrace you. आपका स्वर्गीय पिता यहाँ पर है आपको गले लगाने के लिए. But it is purity. Every time we call for revival, जब कभी हम बेदारी के लिए पुकारते हैं, यहाँ पर दोपहर में intercession होता है, मध्यस्थी होती है, and I'm sure every single day we are crying out for revival. Every single day we are saying, God visit our land. हर दिन हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर बेदारी को भेज, परमेश्वर हमारी जमीन को छू, परमेश्वर हमारे देश को स्पर्श कर. And every time there is a cry from heaven that says revival, I believe there is a cry that comes out from heaven that says purity and that says holiness. Because my Bible says nobody pours out fresh wine into old wineskins. कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में भरता नहीं है. और उसी तरह हमें हमारे विचारों को नया करना. इसीलिए बाइबल कहती है कि अपने मनों को नया करो, उस तरह सोचो जिस तरह परमेश्वर का वचन हमें सोचने पर मजबूर करता है. उस तरह सोचो जिस तरह परमेश्वर का वचन सोचता है. उस तरह अपने आप को देखो जिस तरह परमेश्वर का वचन आपको देखता है. उस तरह नहीं कि जिस तरह दुनिया हमको, दुनिया के लिए, लिसन, फॉर द वर्ल्ड विल ऑलवेज बी लूजर्स. You know, I was talking to one of my ex-colleagues just outside as I was sitting here, and he was one of those guys who used to tease us when I was at work. हम भगवान का आदमी है. You know, they can do whatever, but they cannot deny what they see on your life. Amen. They will never be able to deny what you carry. जो आप लेकर चलते हो, जो वो आपके जीवन पर देखते हैं, जो अभिषेक वो आपके जीवन पर देखते हैं, जो सच्चाई वो आपके जीवन पर, जो कमजोरियां भी जो आपके जीवन पर देखते हैं, they will never be able to say no to it. Am I perfect? No. क्या हम सिद्ध है? नहीं है. मगर बाइबल बताती है हमारी कमजोरी में उसका बल सिद्ध होता है. Hallelujah. If Daniel, being a slave boy, could stand up and say, no, I will not compromise. I will live a holy life. We are free people. We are free in a free nation. हम लोग आज़ाद लोग हैं, आज़ाद देश में हैं, आत्मिक रीति से भी आज़ाद हैं. हम खड़े रहकर बोल सकते हैं, नहीं, हम अपने आप को दूषित नहीं होने देंगे. हालेलुया. हम ये नहीं कर पाते क्योंकि हमने विश्वास कर लिया, नहीं, मैं करूंगा तब जाके तो मैं बनूंगा. लेकिन प्यारो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप ऑलरेडी पवित्र हो. Come on, you don't believe me. आप ऑलरेडी पवित्र हो क्योंकि यीशु मसीह के लहू ने वो कर दिया है. हालेलुया. यीशु मसीह के क्रूस ने उस बात को कर दिया है. वो एक बार मरा, एक बार गाड़ा गया, एक बार जिंदा हुआ हमेशा के लिए, और उसने जो काम किया वो आज, सदा और आने वाले दिनों में जब तक यीशु मसीह वापस नहीं आता तब तक वैसा ही रहेगा, बदलेगा नहीं. हालेलुया. And I was listening to somebody and he said, मैं किसी की बातें सुन रहा था और उसने कहा जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा उसने सिर्फ पर्दा फाड़ा नहीं. He just did not tear a curtain, he tore himself up. So I have access into my Father's house. Amen. And that's what God wants to remind us today. Listen, you will not become holy by doing holy things. You will not become a good person by doing charity. आप पवित्र काम करके पवित्र व्यक्ति नहीं बनोगे. आप भले काम, दया के काम करके आप पवित्र व्यक्ति नहीं बनोगे. आप पवित्र हो, आप चुने हुए हो, इसीलिए आप वो काम कर सकते हो. हालेलुया. You know, मैं अमीर हूँ इसके लिए मैं देता नहीं हूँ, मैं देता हूँ इसके लिए मैं अमीर हूँ. हालेलुया. और ये चीज हम में से हर एक की जिंदगी के लिए सच्चाई है.
मैं विश्वास करता हूँ, I believe we are on the edge of the greatest move of God this city has ever seen. And I know we've heard this so many times. हमने कितने conferences में ये बातों को सुना है, मगर I know what I'm hearing from God. मैं जानता हूँ, and और एक पीढ़ी होने के नाते हमें वो लोग बन के रहना है. Listen, devil, whatever opportunities you bring your way, I will not move. I will not do anything to jeopardize what I have with my God. Amen. He's washed me clean once forever. Whatever I do, the biggest mess I create does not change that I am my Father's son. My God will give me grace to move out of it. Amen. मेरा परमेश्वर मुझको अनुग्रह देगा कि मैं उसमें से बाहर निकलूं. मेरा परमेश्वर मुझको अनुग्रह देगा कि मैं हर एक दोष में से बाहर निकलूं. Half the time we are not, so many people, they're not able to achieve what God has placed in their life just because of guilt. सिर्फ दोष के कारण हम लोग नहीं कर पाते उन चीज़ों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है. मगर बाइबल कहती है वो जो मसीह यीशु में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है. They that are in Christ, they are a new creation. Old things have passed away. See, He makes everything new. अगर हम विश्वास करेंगे तो ही हम उसमें चल पाएंगे. Hallelujah. Hallelujah. Do you believe the blood of Jesus still has power? क्या विश्वास करते हो यीशु मसीह के लहू में आज भी सामर्थ है? अगर उसके लहू में उस दिन सामर्थ था जब वो 2000 साल पहले मरा, तो आज भी सामर्थ है. हालेलुया. आमीन. अगर उसके लहू ने उस दिन मुझको शुद्ध किया था, तो आज भी मैं शुद्ध हूँ. हालेलुया. आमीन. उसका लहू का सामर्थ मेरे जिंदगी की वजह से कम नहीं होता है. उसके लहू का सामर्थ उसके कारण है, मेरे कारण नहीं है. I got saved by His grace, not by my works. Hallelujah. So I want to talk to you today and say, it's okay if you failed. It's okay if you failed. But don't let that failure keep you away from your Father's house. None of us is perfect. हम में से कोई सिद्ध नहीं है. हम में से कोई that ad comes, क्या है वो? डेटॉल का धुला हुआ नहीं है. हम उसके लहू के धुले हुए हैं. Amen. Hallelujah. Can't see your faces. आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ. आपके पाप से, your sin has no power over your destiny. What He has purposed for you, He is still willing to do if we run to Him. जो उसने तय किया है हमारे लिए, वो आज भी करने को तैयार है अगर हम उसके पास दौड़ कर जाएं तो. Hallelujah. We have to see the only reason that son, the prodigal son, could come back because he said, "That's my father's house." वो मेरे बाप का घर है यार, मैं उधर नहीं जाऊंगा तो किधर जाऊंगा? Amen. अगर उसके घर नहीं जाएंगे तो वापस कहां जाएंगे? क्या उसमें दोष था? हाँ था. क्या उसने गलती की थी? हाँ की थी. मगर उससे उसके पिता का और उसके बीच का रिश्ता खराब नहीं हुआ. Everybody else thought the father will treat him differently. His own brother thought the father will treat him differently, but the father did not treat him differently. Amen. All our struggles will be over the day we understand the heart of our Father. There is a reason the shepherd left the 99 and went searching for the one. एक कारण था जिसके वजह से वो चरवाहे ने 99 को छोड़कर एक को ढूंढने गया. क्योंकि अगर
आप मेमनों के बारे में सीखें, पढ़ें, तो अगर वो मेमना कहीं गिर जाता है ना अपने पीठ के बल, तो कुछ भी कर ले वो वापस खड़ा नहीं हो सकता। अगर वो साइड में ऐसा गिरा है तो उठ जाएगा, बट अगर वो पीठ के बल गिरा ना, वो उठ नहीं पाएगा, वो उसी पोजीशन में मर जाएगा, हिल नहीं पाएगा वो। कभी कभी हम गिर जाते हैं और परिस्थितियां और दुनिया हमको उठने नहीं देती है, दुश्मन के झूठ हमको उठने नहीं देते। अगर हम वहीं पर पड़े रहेंगे ना, हम इसके लिए परमेश्वर हमारा ढूंढता हुआ आता है। इसके लिए बाप खुद दौड़ कर गया, और जब उसको मिला उसने क्या किया, उठा के उसको कंधे पर बिठाया। आमीन। आप कंधे पर किसको बिठाते हो? जिस पर आपको नाज होता है। आमीन। उसने कितनी भी बड़ी गलती की हो, उसके बाप ने उसको उठा के कंधे पर बिठाया है। आमीन। आज आपका पाप कितना भी बड़ा हो, आज आपकी गलती कितनी भी बुरी हो, आज आपका पाप शायद किसी को पता नहीं, केवल आपको पता है, मगर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपके पिता को आप पर नाज है। योर फादर इज प्राउड ऑफ यू। He wants to carry you on his shoulders if you allow him to. If you said, I am done, I have decided I will live a holy life, I will live a life that pleases my Father in heaven, see the grace that is released over our lives. Amen. One last thing and then we will pray. Are we learning something? In the Old Testament, the Bible says one day David decided that he will bring the ark of God into the city. एक दिन दाऊद ने निर्णय लिया कि वो परमेश्वर के संदूक को वापस यरूशलेम में लेकर आएगा। और बाइबल बताती है उसने बहुत बड़ा जुलूस निकाला, बहुत सारे लोग आए और सबने क्या किया, गए और उस संदूक को उठाया। बाइबल से नया बैलगाड़ी पे रखा और उधर से लेकर आ रहे थे, बैलगाड़ी पे रखा, लेकर आ रहे थे, और आते वक्त वो हिल गए बैल, तो वो संदूक गिरने जा रहा था, तो किसी ने हाथ लगाया, वो बेचारा मर गया। और हम जानते हैं क्यों मरा, क्योंकि वो संदूक को एक जगह से दूसरी जगह अगर लेकर जाना था तो परमेश्वर ने उसके तरीके बताए थे कुछ। सिर्फ याजक लोग अपने कंधे पर सोने की छड़ियों के ऊपर उसको लेकर आया जाया करते थे, वो उसका तरीका था। आमीन, हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे शहर में बसे, अगर हम चाहते हैं हमारे शहरों में, हमारे घरों में, हमारे दफ्तरों में, हमारे कॉलेजेस में परमेश्वर की उपस्थिति आए, तो हमारे तरीके से नहीं आएगी, जिस तरह परमेश्वर चाहता है उसी तरीके से आएगी। आमीन, आमीन। परमेश्वर चाहता है कि कुछ याजक वो पूरा संदूक, उसका पूरा बोझ अपने कंधे पर उठाकर चले। हालेलुया। परमेश्वर पुराने करार का, इसका अभी का एक ही परमेश्वर है, उसके सिद्धांत बदलते नहीं है। His principles don't change, and if God wanted him to be carried on shoulders today, that day he wants the same today as well. Amen. नए करार में यीशु मसीह को जब यरूशलेम आना था, कोई उसको कंधे पर उठाने के लिए तैयार नहीं था, एक गधा मिला, उसके कंधे पर बैठकर वो आया। Hallelujah. And today he's searching for some donkeys. Honestly, he's searching for some donkeys. आज परमेश्वर ऐसी कुछ गधों को तलाश रहा है जो कहेगा, बाकी जिसको जो बोलना है बोलने दे, मैं उसको कंधे पर बिठा के दिखाऊंगा, मैं उसको लेकर चलूंगा, मुझको उसकी शर्म नहीं आएगी। Come on. Hallelujah. वो याजक जो कंधे पर उसको लेकर चलते थे ना, उनको दूर से देख के पहचाना जा सकता था कि ये लोग वो है जो कंधे पर वो लेकर चलते हैं। क्यों पता है? वो किसी बोझ को आप बार बार कहीं पर रखो तो उसके निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं। Hallelujah. When we carry God and walk, they will notice. Amen. Don't let what the world is telling us take away this opportunity from us where we can carry our God. Amen. Let's walk. Let's carry him on our shoulders. Let's give him a victory lap, you know. He scored the biggest goal the world has ever seen. Amen. Hallelujah. He is the champion. He is the man of the series. Hallelujah. To him,
all the talents and all the titles, they all belong to him, and we should be proud to carry him around. And the only reason we are not able to do it is because we think we are not worthy. And I want to tell you today, the blood of Jesus has cleansed us all once and for all. Once and for all. There is nothing in you that displeases your Father. Hallelujah. Yes, we are all work in progress. हम सबके ऊपर परमेश्वर का काम जिस दिन हम मरते नहीं तब तक चलता रहेगा. मगर ऐसा कुछ नहीं है हमारे ऊपर जिसको देखकर परमेश्वर नाराज होता हो, क्योंकि जितना उसको नाराज होना था वो यीशु मसीह पर हो लिया. अब उसके अंदर कोई गुस्सा बचा नहीं है. हालेलुया. आज आपका पिता आपसे नाराज नहीं है. Your father is not angry with you. He loves you. आपका पिता आज आपसे प्यार करता है. So today we will pray right now. And if there is anybody struggling with this whole thing of guilt, अगर कोई है जो इस दोष से होकर गुजर रहा है कि यार मैं इस बात के लायक नहीं, मैं ये कर नहीं सकता, या मैंने ये क्या कर दिया, ये मेरे जीवन से कैसे हो गया, या परमेश्वर मुझसे नाराज है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप एक नई सृष्टि हो. यू आर अ न्यू क्रिएशन. जस्ट लाइक हाउ डैनियल पर्पस्ड दैट डे, इफ वी पर्पस इट टुडे, जिस तरह उस दिन उसने निर्णय लिया, अगर आज हम निर्णय लेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवनों के ऊपर आएगा. Hallelujah. His grace will come. His grace will enable us. Grace is not a license to sin again. Grace is the overpowering strength of God. Amen. परमेश्वर का अनुग्रह ताकत है कि हम उस पाप के ऊपर विजयी जीवन जी सकते हैं. Amen. Hallelujah. It's a good news. It's a good news. ये अच्छी खबर है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. जो कुछ करना था हमारे बाप ने कर दिया. Hallelujah. This is the reason people don't, लोगों को है ना सुसमाचार हजम नहीं होता है. क्यों पता है? कोई ऑफर अगर बहुत ज्यादा अच्छा होगा ना तो सब लोग बोलते हैं कुछ ना कुछ तो लोचा है इसके अंदर. Amen. And that's what the gospel is. It's too good to be true, but it is true. Amen. He has done everything for us. There's nothing left for us to do but this, that we carry him on our shoulders. It's not just about 21 days of saturate. It's about every single day of our life after that. Amen. My wife was telling me, sitting behind, after saturate I'll be bored. I'm like, what am I supposed to do? Like, there's a lot to be done. Hallelujah. Greater things are yet to be done in this city. Greater things are still to be done in this nation. Amen. And God is waiting. He's about to pour out a blessing. He's about to pour out an anointing. He's about to pour out the move of God. But are we ready to get it? Are we ready to hold it? We've got to be in position. Amen. Can we get into position? Can we say, God, yes, we are ready. We are ready in prayer. We are ready. We know we can take it. We know we can handle it. Send it, God. Amen. Game on. Hallelujah. Shall we stand? Come. Shall we stand? And right now, even as the worship team comes and they start worshiping, I want you to take this time. मैं चाहता हूँ आप अपना समय परमेश्वर के साथ बिताएं. I know there are people here struggling. मैं जानता हूँ यहाँ पे लोग हैं जो जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं कि एक पवित्र जीवन जी सके. You're struggling with thoughts that don't please God. आप उन विचारों से लड़ रहे हो जो आपको अभिलाषा में गिराते हैं. आप कोई निर्णय लेना चाहते हो जो आपको पता है जो निर्णय आप लोगे तो वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है. आप ऐसे जगहों पर खड़े हो जहाँ पर आपको हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है. मगर आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर के नाम के लिए खड़े रहें, परमेश्वर अपना अनुग्रह उंडेलने के लिए तैयार है. परमेश्वर अपनी दया उंडेलने के लिए तैयार है. If you are struggling with anything right now, be it sin, I don't care what it is,
would you just lift up a cry in this place? क्या आप परमेश्वर को आज की शाम पुकार सकते हो and say, God, I have decided that I will not defile myself anymore. मैंने निर्णय लिया है परमेश्वर कि मैं अब से अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा परमेश्वर. मैं तेरे वचन पर खड़ा होकर चलूंगा परमेश्वर. I will not compromise. मैं कहीं पर भी समझौता नहीं करूंगा परमेश्वर. तेरा अनुग्रह दे प्रभु जी. मैं कमजोर हूं प्रभु, मगर मैं जानता हूं कि तेरा अनुग्रह मुझको बल देता है परमेश्वर. जहां मैं कमजोर हूं, तेरा बल मेरे जीवन के अंदर सिद्ध होता है. Wherever I am weak, you make me strong. Your strength is perfected in me, oh God. I can live a holy life because I am holy. I can live a holy life because I am blood washed. I am set apart. I am chosen. I am not weak, but I am strong. I am my Father's son, and nothing will change that. Come on, somebody cry out to God. Somebody lift up your voice and say, God, I need help today. I want to be that vessel that carries your anointing. I want to be that vessel in which you pour. Bible says He stores treasures in earthen vessels, and there are vessels here. और यहाँ पर बर्तन हैं जिसके अंदर उसने खजानों को भर के रखा है. आप वो बर्तन हो जिसके अंदर उसने खजानों को भर के रखा है. I say, God, I have purposed. I will not defile myself. I will live a holy life. मैं पवित्र जीवन जीऊंगा क्योंकि मैं पवित्र हूँ. मैं एक सच्चा जीवन जीऊंगा क्योंकि सच का आत्मा मेरे अंदर निवास करता है.